friends, we have with us our guest of honor, Mr. R.V.S. Mani in our Weekend Talk Show. And our topic for today that we have taken from his famous book, The Myth of Hindu Terror. Good evening, Mr. R.V.S. Mani. The name Good evening. doesn't need any recognition in the whole of India. Thank you. We all in Bhopal and thousands of your fans in Madhya Pradesh today welcome you and thank you from the core of our heart for your gracious presence in our talk show. For my audiences and my viewers, Mr. Mani had a distinguished career in the most sensitive internal security department of Ministry of Home, Government of India from 2006 to 2010. He had also the distinction of handling one of the deadliest terrorist attacks on the Indian soil by Pakistan that we have witnessed in the recent past, the Mumbai terror attack 2008, in which Ajmal Kasab was the lone survivor. As one of the most decorated officers in the Ministry of Home, Mr. Mani handled many sensitive and challenging cases, including the infamous Ishrat Jahan encounter case, which lot of people have tried to make it, paint it as a fake encounter. We will discuss regarding this issue in the program today. And he's also the most controversial cases of all, the Malegaon blast case, which was the beginning of Hindu terror narrative, saffron terror narrative, Bhagwa Atamka. इसको भी आरवीएस मनी साहब के समय ही इन्होंने हैंडल किया है। आपके विषय में बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। आपका किताब, आप 3 मई को जब भोपाल आए थे, आपकी किताब यहाँ पर उसका विश्लेषण हुआ था और इसमें लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। अगले दिन हमारे सभी समाचार पत्रों में इसके विषय पे संपूर्ण जानकारी दी गई थी। सर, इसके साथ मैं आपको लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा मनी साहब के बारे में। He has been a crusader for UPSC aspirants also, where you have evidenced the very presence of Islamic Jihad, as we see increasing number of Muslim candidates clearing UPSC through Islamic studies as an optional subject. The students are from the Islamic fraternity, so do the question setters and the examiners also from the same religion, all in one, easy entry into top level bureaucracy and hijacking it. Once again, I, Devanjan Bose, along with my colleague Anshuman Khare from Hindustan Live News, welcome you on our program, the weekly talk show, and I'm assured our viewers will be shell-shocked with the startling revelations and the chilling accounts of many terrorist attacks and the insider account of MHA, how it functions, and at the same time, the nasty politics playing a major role in crucifying some of the innocents while providing a cover to terrorist outfits and their masters. Thank you, sir. Once again, I thank you from the core of my heart. Please, sir. Thank you very much. I am really honored that my encomiums have been so big by Mr. Devanjan Bose, who is a friend. So I accept his love for me. Khare, sir. Anshuman Khare. Anshuman Khare. Yes. Having said that, I am comfortable in English as well as Hindi. मैं अंग्रेजी एवं हिंदी में सक्षम हूँ। जहाँ तक यथाशक्ति प्रयास हो सकता है, मैं किसी भाषा में, दोनों भाषा में आप लोगों से इस संवाद को आगे ले जाऊंगा। हिंदी हार्टलैंड, हिंदी में हम यही प्रयास करेंगे, आपके साथ हिंदी में हम जो है बातचीत करेंगे। To start with, sir, we would like to know the infamous Ishrat Jahan encounter case, your submission of counter affidavit on behalf of MHA, the further affidavit by lawyer Chidambaram, maneuvering of the facts, and what did the then UPA government intended to do with? What was the real motive, and why the UPA ministry was strongly offended with you, and how did they torture you? Yes, please. मैं इसके हलफनामा के बात आने से पहले कुछ तत्व आपके सामने रखूंगा। इस मामले में जो आपको फाइल में मिलेंगे और
कुछ तत्व वैसे वास्तविकता में है, जो कोर्ट केसेस वगैरह में चीजें सामने आई है। इशरत जहान जिस गाड़ी में थी, उनके साथ एक गुलाम शेख, जावेद गुलाम शेख के था, जो पहले उसका नाम था, धर्म परिवर्तन से पहले उसका नाम था प्रणेश कुमार पिल्लई। वो गल्फ में गया, वहां रेडिकलाइज हुआ। वो प्रणेश कुमार पिल्लई मुंबई में एक छोटा मोटा क्रिमिनल था। फिर उसको इन्होंने पकड़ा, फिर वो गल्फ में कोई नौकरी के बहाने गया, वहां रेडिकलाइज से अपना धर्म परिवर्तन करके आया, और उसने किसी से निकाह भी कर रखी है, और पुणे में जाके अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस सेटल किया था। ये तो पहला तत्व है। इशरत जहान के साथ उस गाड़ी में दो और लोग थे। प्रणेश कुमार पिल्लई या जावेद शेख जो है गाड़ी चला रहा था, साथ में इशरत बैठी, पीछे दो और लोग थे। उन दो लोगों के बारे में किसी ने भी आज तक विश्लेषण ना की है, ना उनकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश की है। कोई भी प्रयास नहीं हुआ। जितने भी ये भ्रमित धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर अपने आप को कहने वाले जर्नलिस्ट हो, या राजनेता हो, या अन्य कोई भी बड़े बड़े अफसर जो आजकल पिटिशन का जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, इनमें से किसी ने भी, बाकी जो बैठे हुए थे उनके बारे में कभी कोई जानकारी हासिल नहीं की। और ये तत्व है, इस सरकारी फाइलों में लिखा हुआ है कि बाकी दो लोग थे, एक जीशन जौहर, एक अमजद राणा, ये पाकिस्तानी नागरिक थे। एक बार पहले जम्मू में पकड़े गए, फिर कैसे छूट के चले गए, फिर वापस ये अवैध तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश किया हुए लोग थे। सर, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए। दे शुड नो दैट इशरत जहां was not the only one. There were two perpetrators, two terrorists from Pakistan. They included into India. वो हिंदुस्तान में घुसे और इशरत जहां के साथ मिलकर आगे कार्रवाई करने वाले थे, जिसके बारे में आप बताएंगे। ये और जो षड्यंत्र जो हमारे खुफिया एजेंसी ने गुजरात गवर्नमेंट को दिया था, उसमें स्पष्ट था कि उनका जो षड्यंत्र का उद्देश्य ये था कि तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री और तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड द होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात were the targets, and it was an attempt to assassinate them. ये उनका, this was the objective of the four people traveling in that car. It is very well stated in that when the affidavit, after this, some people, after the Ishrat Jahan was killed, first Ishrat Jahan's mother, उनकी माँ को कुछ ये जो भ्रमित या झूठे धर्मनिरपेक्ष के लोग हैं, उनके माँ को अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के उनको कहा कि आप कॉम्पनसेशन मांगे। सुप्रीम कोर्ट में गई थी वो, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले आप हाई कोर्ट में जाएं। तो इसी फलस्वरूप वो हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर किया। जैसे ही याचिका दायर किया तो गोपीनाथन पिल्लई, जो जावेद मोहम्मद शेख के पिताजी थे, वो उनके पिताजी और परिजन भी आके उसी याचिका में सम्मिलित हो गए और जाके ये एक याचिका बनी। तो इसमें ये करते करते 2004 से, इस संदर्भ में एक और चीज बताता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इशरत जहान का जो भी हादसा हुआ था, वो घटना घटी थी, वो 14 जून 2004 को घटी थी। 15 जुलाई 2004 के टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में गजवा टाइम्स का क्लिपिंग छपा था। गजवा टाइम्स जैश-ए मोहम्मद की एक माउथ पीस पेपर है, और उसमें यह लिखा था, हमें इस बात का गर्व है कि इशरत जहान एक फिदाइन थी और उसने अपनी जान दे दी एक जिहाद के करते करते। ऐसा कुछ बड़ा स्पष्ट है। ये एक वो तो इशरत जहान तो टेररिस्ट थी ही, उसके साथ 3 लोग और टेररिस्ट थे ये, और उनका षड्यंत्र ये था कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं संभवतः से, और तत्कालीन गृह मंत्री गुजरात के, जो आज संभवतः से भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, इन दोनों को
मारने का, हत्या करने की साजिश में थे, हत्या करने का षड्यंत्र था, उसी के ये चलते ये लोग उसका कार्यकर्ता बन के आ रहे थे, ये स्पष्ट कर दो। दूसरा, ये गजवा टाइम से भी प्रूव हो चुका है। 2009 में, मैं 2004-5 के बहुत लेट में आया, 2005-6 से ही मेरा इफेक्टिव टेन्योर शुरू हुआ है। 2009 में हाई कोर्ट से ये सारे जो इनका जो कार्रवाई करते करते 2003-4 साल गुजर गए, और 2009 में हमारे पास हाई कोर्ट का नोटिस आया। जब नोटिस आया, उन्होंने कहा क्योंकि ये केंद्रीय खुफिया एजेंसी के बारे में सूचना के आधार पे इन्होंने गोली मारने का दिया है, आर्ग्यूमेंट प्ली लिया है, तो इसलिए हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय अपना पक्ष इस न्यायालय के सामने रखे। तो हमने सारा तत्व खोज निकाला। खोज निकालते वक्त ये सारी चीजें आई थी कि उनका उद्देश्य तत्कालीन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को मारना, उनका हत्या करना। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो उनका ये कहना, और पूरा सारी चीज उन्होंने कहां से जाके उन्होंने आर्म्स का प्रोक्योरमेंट किया, मतलब असला खरीदा, किस किस जगह गए थे, कहां से सिम कार्ड खरीदा, ये सारी तत्वें फाइल में पड़ी हुई थी, आईबी के इनपुट में थी। साफ साफ जो एक बहुत ही शोषित ऑफिसर था राजेंद्र कुमार, जिनको मेरे से ज्यादा शोषण किया यूपीए की सरकार ने, उनको रिटायरमेंट तक ना होने दी, उनका बिल्कुल आधार के साथ ये इनपुट था, ये कोई हल्का इनपुट नहीं था। स्टेशन हेड जॉइंट डायरेक्टर अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने सारी चीज खोज निकाली। उनकी टीम के काफी सदस्य और भी काफी शोषित हुए तत्कालीन, परंतु ये इस तरीके से था। तत्पश्चात मैंने सारी चीज एक सीरियल से अपने एफिडेविट एक ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करके मैंने आगे भेजा। तो इन्होंने ये हटा दिया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा प्रोमिनेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ द स्टेट कह के उन्होंने इतना संशोधन किया था। किसने कहा कि इसको हटाने के लिए? हटाए नहीं, उन्होंने संशोधन कर दिया। तो उसमें कोई संशोधन इतना ही किया था, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे जो संशोधन हुआ था, सिर्फ इतना लिखा था कि उनके सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है, इसलिए लिखा था। ये कोई उसका कोई ऐसा वो नहीं था। प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स तो चलता है, बिकॉज वो प्रोमिनेंट थे ही, नाम हटाए, क्योंकि नाम नहीं के बोलते, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है, इट वॉज एक्सेप्टेबल। पी चिदम्बरम जी तत्कालीन गृह मंत्री ने उसका अनुमोदन किया था, ये फाइल में है, उनके हस्ताक्षर हैं। फिर उन्होंने ये लिखते लिखते ये भी कहा कि विधि सचिव को भी ये दिखा दिया जाए, लॉ सेक्रेटरी, द फाइल में बी शोन टू द लॉ सेक्रेटरी। लॉ सेक्रेटरी क्लियर्ड द फाइल। उसके बाद वापस मेरे पास जब लौटी, मुझे आदेश के मिला था कि ये जाके हलफनामा आप अहमदाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दो। तो मैं 6 तारीख को, 5 तारीख शाम को निकला, और 6 तारीख सुबह वहां के एक असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल वकील होता है जो सरकार अपने पक्ष रखने के लिए अपॉइंट करती है, एम्पैनल करती है। और गुजरात में जो दुर्भाग्यवंश जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल थे, शुरू में उन्होंने काफी बाधाएं की। फिर मैं काफी फोर्स करके उनका जाके, बड़ा मुश्किल से शाम को 4 बजे तक जाके वो हलफनामा फाइल हुआ है। उसके बारे में भी मैंने पूरा किताब में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। परंतु वापस आने के बाद पी चिदम्बरम साहब विदेश यात्रा में गए थे सितंबर में, तब जाके कोई इसके ऊपर चर्चा टीवी वगैरह में शुरू हो गई थी, इंटरनेशनल भी काफी बड़ी चर्चा थी। अच्छा, उनको तो पता लग गया था कि हालांकि महत्वपूर्ण राजनेता होने के बाद भी सबको पता था कौन गुजरात के 2 महत्वपूर्ण राजनेता हैं तत्कालीन। तो इंटरनेशनल मीडिया वगैरह में तो उनको कुछ धर्म संकट क्या हुआ पता नहीं, वापस आके
सबको बुला के फाइल अपने पास रख लिया। फाइल अपने पास रखने के बाद सितंबर के 23-24 तारीख को उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा। कहता उन्होंने फाइल में लिखा हुआ, आई हैव ड्राफ्टेड द अनदर एफिडेविट, प्लीज गेट इट वेटेड बाय अटॉर्नी जनरल। तो वो गृह सचिव के पास आए तत्कालीन, तत्पश्चात हमारे एक निदेशक जी के पास आए, निदेशक जी ने संपर्क करने की कोशिश की, फिर उसी फाइल में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल इज आउट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने वापस गृह मंत्री ने कहा, आई हैव स्पोकन टू हिम, आई हैव एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट, अरेंज टू फाइल इट, आस्क द अंडर सेक्रेटरी टू गो एंड फाइल इट। ये सब रिकॉर्ड है, ये आरटीआई में बाहर आ चुका है। बाहर आ गया, उसके बाद हम को आदेश मिला, हमने जाके अहमदाबाद में 29 सितंबर को जाके इसका समर्पण कर दिया था। वो दूसरे एफिडेविट में, दूसरे हलफनामे में जो पहले हमने कहा था इशरत जहां is based on all the inputs available, she was a terrorist। तो चिदम्बरम साहब ने उसको बदल दिया जो फर्दर एफिडेविट का, कि आईबी इनपुट के आधार पर हम उसको टेररिस्ट नहीं कह सकते। फिर किसके आधार पे कहते वो तो चिदम्बरम साहब को ज्यादा संज्ञान होगा। और दूसरा जो उसके ऊपर बात ही हटा दी उन्होंने कि उसके साथ जो 2 लोग और थे वो पाकिस्तानी थे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी अगर सिद्ध होता तो ये टेररिस्ट थी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक निकलता है। तो वो सब चीजें हटा के उन्होंने आगे कर दिया। बहरहाल फिर उसके बाद कई मुद्दे चलते रहे। बाद में कुछ रिपीटेडली हम लोग रेसिस्ट कर रहे थे, 3 लोग हिंदू टेरर को, और मुंबई के जांच में भी काफी कुछ यहां से हस्तक्षेप हो रहा था, चिदम्बरम जी के ऑफिस से हस्तक्षेप हो रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री के थ्रू हस्तक्षेप हो रहा था, कई चीजें हुई। तो पहले 2 मार्च 2010 को, ये 2009 में हुआ और ये खींचातानी चलती रही। 2 मार्च 2010 को जो संयुक्त सचिव थे हमारे, उनका वहां से तबादला हुआ इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन से। फिर जून में मेरा तबादला इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन से हो गया। और बीच में एक निदेशक थे, उनको पता नहीं क्या विवश कर दिया कि वो अवकाश चले गए, छुट्टी में चले गए, लंबी छुट्टी में। तो इनको मैदान साफ मिल गया। जून में मेरे जाने के बाद, सबके बाहर जाने के बाद, जुलाई में पहली बार, जुलाई 2000, ये भी एक न्यूज़ के चैनल में आरटीआई निकल के आया है, उससे पहले कोई नहीं है। जुलाई में एक संयुक्त सचिव उसमें लिखते हैं, वी हैव केसेस ऑफ हिंदू टेरर ऑल्सो। पहली बार 17 जुलाई 2010। उससे पहले आपको किसी भी जगह पे आरटीआई से निकाल लीजिएगा, किसी भी फाइल की टिप्पणी में ये नहीं मिलेगा हमने इतने जानबूझ के उसको रेसिस्ट किया था। परंतु हम तीनों को विवश करके निकालने के बाद ये हुआ। फिर कुछ और वजह से मेरे को दिल्ली से ट्रांसफर करके मुंबई में भेज दिया। वो कैसे भेजा था कि पहले तो मेरे से कंसेंट ले ली जबरदस्ती और उसके बाद भेज दिया।